নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিলম্বিত ডিআইজি ৰনক আলী হাজৰিকাক পুনৰ জেৰা আজি কাৰাগাৰতে জেৰা চলালে সিএম ভিজিলেন্স আৰু সিআইডিয়ে দুদিন পূৰ্বেও জেৰা চলাইছিল নিলম্বিত ডিআইজি গৰাকীক জেৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰা নাছিল ডিআইজি গৰাকীয়ে অধিক বিষয়ত মুখ খোলা নাছিল ডিআইজি গৰাকীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণৰ সন্দৰ্ভতো জেৰা কৰে তদন্তকাৰী দলটোৱে আজি কিছু সহযোগিতা কৰে বুলি জনালে সিএম ভিজিলেন্সৰ দলে পুনৰ কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীত চলিব জেৰা তদন্তৰ শেষত সংবাদ মেলযোগে সদৰি কৰিব সকলো তথ্য পুনৰবাৰ জনাইছো মই এতিয়া কলো আজিৰ তাৰিখত এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত আমাৰ কথা হৈছে আমাৰ সিআইডি টিম আছে এক্সপাৰ্ট অফিচাৰ দুইজনে ধুনীয়া পৰিৱেশত কথা বতৰা হৈছে আৰু আমি যিখিনি তথ্য বিচাৰিছোঁ একেদিনা গোটেইখিনি শেষ কৰাটো সম্ভৱ নহয় আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কৰিছোঁ আমি আকৌ আহিম মানে আজি শেষ হোৱা নাই আমি আকৌ আহিম আৰু সেইদিনা হয়তো আমি শেষ কৰি পেলাই এটা প্ৰেছ মিট দি দিম SP মেডামে আপোনালোকক ক'ব যিখিনি ক'ব লাগে অভিযানটো চলোৱা নাই আমাৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আছে তেখেতৰ ওপৰত অফিচিয়েল ছিক্ৰেটছ এক্ট এই এক্টখনত আমাৰ সহায়ক হোৱাৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন তেখেতক সুধিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰটো আমি ইতিমধ্যে জানো কিন্তু তেখেতৰ মুখেৰে কি কয় তেখেতে ফৰেন ভিজিট কৰিছে তাৰ তথ্যখিনি লুকুৱাব নোৱাৰে আমি পাইছোঁ কিন্তু কিয় ভিজিট কৰিলে এই কথাখিনি আমি পাতিছোঁ সেই ধনৰ উৎসখিনিৰ কথা এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই এই কাৰণে আহিছোঁ আজি অফিচিয়েল ছিক্ৰেট চেক সেইটো পাৰপাছত আমি তেখেতক সোধপোছ কৰিবলৈ আহিছোঁ তেখেতে ফৰেন ভিজিট বহুবাৰ কৰিছে কিয় কৰিছে তাৰ টকাৰ সূত্ৰটো কি এইখিনি কথাই তেখেতক আমি সুধিছোঁ মানে আমাৰ তদন্তত সহায়ক হোৱাকৈ যিখিনি আমাক লাগে আমি মোটামুটি পাইছোঁ আজি জয়সালমেৰ জিলাৰ মৰুভূমি অঞ্চলত থকা সৰু গাঁওসমূহত শিশুসকল সাধাৰণতে পুষ্টিহীনতাত ভোগা দেখা যায় লকডাউনৰ বাবেও স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে যথেষ্ট সমস্যাত ভোগা দেখা যায় ৰাজস্থানৰ চৰকাৰী চিকিৎসকসকলৰ মতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ এতিয়া নৱজাতকসকলৰ ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হয় টিকাকৰণৰ বাবে নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ সজাগতা অভিযান এ শ্বট অফ লাইফে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট পুষ্টিহীনতা আৰু দুৰ্বলতা ৰাজস্থানৰ জয়সালমেৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ চৰকাৰী হাস্পতালত এয়া এক সাধাৰণ দৃশ্য तो जो बच्चे हैं वो हट्टे कट्टे हैं या कमजोर है पतले हैं दुबले हैं कमजोर है बिल्कुल पतले চিকিৎসকসকলৰ মতে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পুষ্টিকাৰক আৰু সন্তুলিত আহাৰ কমকৈ খোৱা बच्चों को आप क्या सब्जी वगैरह यहाँ मिलती है दे पाते हैं नहीं मिलती है बिल्कुल नहीं मिलती है तो भाई 88 किलोमीटर दूर है वो तो सब्जी वब्जी नहीं है मेनली यहाँ पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है हरी पत्तेदार सब्जियाँ उनकी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं रहती है जिससे हमको जनरली देखने में आता है ज़्यादातर बच्चे और गर्भवती महिलाएं माल न्यूट्रिशन का शिकार रहती है उनमें कमजोरी रहती है आयरन की कमी हो जाती है हरी सब्जियाँ नहीं मिलने से और जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह की यहाँ कोई सप्लाई रहती नहीं है तो बच्चे और गर्भवती महिलाएं फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उनमें इस क्षेत्र में इस वजह से ज़्यादा पाया जा रहा है থৰ মৰুভূমিত থকা দূৰ দূৰণিৰ গাঁওসমূহত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে যোৱাটো অসম্ভৱ আছিল চিকিৎসকসকলে জনায় যে এতিয়া জন্ম লাভ কৰা অধিক সংখ্যক শিশুৰ ক্ষেত্ৰতেই ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती हो हर तरह का जो उसको रिक्वायरमेंट उनको अगर सफिशिएंट नहीं मिल पाती तो बच्चा कई बार मेंटली रिटार्डेड हो जाता है तो ऐसे 2-3 केस देखने को मिले हैं हमारा प्रयास वैसे 100% ANC कवर करने का रहता है लेकिन कोरोना काल में कई बार महिलाएं विजिट नहीं कर पाई हॉस्पिटल और कहीं वो आउट ऑफ रीच रह गई जिनकी वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आई है কিন্তু ভাল কথা এয়াই যে সম্প্ৰতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সকলো সা সুবিধা এতিয়া লাহে লাহে আৰম্ভ কৰা হৈছে
ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু লিমিটেড আৰু ছৌদি আৰামকোৰ মাজত 2019 চনত স্বাক্ষৰিত চুক্তি পুনৰ মূল্যায়ন কৰিব। ৰিলায়েন্সৰ 02C ব্যৱসায়ত 1500 কোটি মাৰ্কিন ডলাৰ বিনিয়োগৰ বাবে 2019 চনত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। 20% অংশীদাৰিত্ব ক্ৰয়ৰ বাবে ছৌদি আৰামকো আৰু ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ মাজত স্বাক্ষৰিত চুক্তি দুয়োটা পক্ষই পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে সহমত পোষণ কৰিছে। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডে এটা বিবৃতি যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। ৰিলায়েন্সে 02C ব্যৱসায় একাষৰীয়া কৰাৰ বাবে নেশ্যনেল কোম্পানী ল ট্ৰিবিউনেলত দাখিল কৰা আবেদনো উঠাই লৈছে। কোভিড বিধিৰ স্বত্তেও বিগত 2 বছৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু ছৌদি আৰামকোৱে চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমিল মিলেৰে কাম কৰি আছিল। ব্যৱসায়িক গোষ্ঠী দুটাৰ মাজত থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আৰু পাৰস্পৰিক সদ্ভাৱৰ বাবে এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছিল। ৰিলায়েন্স নিউ এনাৰ্জি এণ্ড মেটেৰিয়েলছ ব্যৱসায়ৰ নতুন আঁচনি মুকলি কৰিছে। জামনগৰত থকা ধীৰুভাই আম্বানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি গিগা কমপ্লেক্সৰ উন্নয়ন সাধন কৰি নৱীকৰণযোগ্য শক্তি উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব। জামনগৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটো পশ্চিম ভাৰতৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ 02C সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে। ৰিলায়েন্স আৰামকোৰ বাবে ভাৰতত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী হৈ ৰব। ৰাজ্যত শীঘ্ৰে বলবৎ হ'ব নতুন শিক্ষানীতি। 25 নৱেম্বৰত শিক্ষানীতিক লৈ কেবিনেটত আলোচনা। কেবিনেটত নিৰূপণ হ'ব শিক্ষানীতি বলবতৰ পৰিকাঠামো। শিক্ষানীতি এখন সাগৰ সদৃশ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা কয়। 2034 চনত শিক্ষানীতি বলবতৰ অন্তিম সীমা। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গাইডলাইন, গঠন কৰা হৈছে শিক্ষা নিয়োগ। উত্তৰ পূবৰ শৈক্ষিক সন্মিলনত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত ষ্টেণ্ড এলন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগে। JB মহাবিদ্যালয়, লখিমপুৰ, নগাঁও 3খন অট'নমাছ কলেজ আছিলে। এই 3খনক আমি বিশ্ববিদ্যালয় কৰিম। তাৰ লগত শিৱসাগৰ আৰু সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়কো আমি বিশ্ববিদ্যালয় কৰিম। মই 3 বছৰ আইডিয়া লৈছোঁ, এখনকৈ হৈ যাব। আমাৰ এডুকেশ্যন পলিচি ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বহুত পৰ্যায়ত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হৈছে। ইয়াত বহুত পইণ্টছ আছে। 25 তাৰিখৰ কেবিনেটত ইয়াৰ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো এপ্ৰুভ কৰিম। কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল হ'ব, কোনটো প্ৰিপেৰেটৰী হ'ব, কোনটো এলিমেণ্টাৰী হ'ব, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কোনটো হ'ব, যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো আমি 25 তাৰিখৰ কেবিনেটত আমি এপ্ৰুভ কৰিম। চাওক, এইটো বহুত ডাঙৰ সাগৰ। ইয়াক টাইমে দিছে 2034 লাষ্ট। প্ৰত্যেক বছৰৰ মাইলষ্ট'নছ আছে যে এই বছৰ কি কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजेंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी रजनी, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत दिवस समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ को मिलेगा भारत का सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें राष्ट्रीय सम्मेलन में होंगे शामिल। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के DGP और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख होंगे उपस्थित। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश निर्मित उपकरणों को सशस्त्र बलों के प्रमुखों को सौंपा। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, भारत सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रहा है काम।
पीएम मोदी ने दी बुंदेलखंड के लोगों को सौगात, पानी की कमी को दूर करने की परियोजनाओं समेत 6,250 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। कहा, यूपी और बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं, बुंदेलखंड से पलायन रोकने और क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी की है जारी। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से बात कर राज्य के ताजा हालात की ली जानकारी। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। रांची में खेले गए दूसरे T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई अजय बढ़त। तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला रविवार को कोलकाता में। बावनवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की आज से गोवा में शुरुआत। महोत्सव में दुनिया भर से 300 से अधिक फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से 5 ब्रिक्स देशों की फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजधानी दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत दिवस समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कचरा मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुसार समारोह में कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत प्रमाणित शहरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस महोत्सव में मंत्रालय द्वारा पहले शुरू की गई सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत शीर्ष निष्पादन करने वाले शहरों को महत्व देते हुए स्वच्छता कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी देगा। पुरस्कार समारोह में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और देश भर के महापौर सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार स्वच्छता में नंबर 1 पायदान पर खड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस बार आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश के सबसे बड़े सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 नवंबर को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा निभाई गई भूमिका और उनके त्याग की सराहना की। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे परंपरागत रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था। हालांकि इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सेना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में वो शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने सेना और झांसी को कई सौगात दी। प्रधानमंत्री झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के 400 करोड़ रुपए की लागत के पहले प्रोजेक्ट की उन्होंने आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को HAL के हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपे। प्रधानमंत्री ने जल संकट को दूर करने की एक अहम पहल के तहत उत्तर प्रदेश के महोबा के कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को आवश्यक राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इनके पूरा हो जाने से
महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पीने योग्य पेयजल भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की वजह से पैदा स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से राज्य में भारी बारिश की वजह से पैदा हालात के बारे में बात की। मैंने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं सभी की सुरक्षा की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। सबसे ज्यादा असर चित्तूर, कड़पा और नेल्लूर जिलों में देखा जा रहा है। जिले के कई निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। कई इलाकों में पानी की तेज बहाव से सड़कें कट गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 115.73 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 308वें दिन शाम 7 बजे तक 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक विधान परिषद चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने महाराष्ट्र के 5 और कर्नाटक के 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कर्नाटक विधान परिषद चुनावों के लिए पार्टी ने कोडागु से सुजा कुशलप्पा, दक्षिण कन्नड़ से कोटा श्रीनिवास पुजारी, चिकमंगलूर से एमके प्रणेश, धारावाड़ से प्रदीप शेट्टार, बेलागावी में से महंतेश कावत गीमठ, गुलबर्गा से बीटी पाटिल, चित्रदुर्ग से केएस नवीन, मैसूर से रघु कौटिल्य, हसन से विश्वनाथ और उत्तर कन्नड़ से गणपति उल्वेकर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के लिए कोल्हापुर से अमल महादेव राव महादिक, धुले सह नंदुरबार से अमरीश रसिकलाल पटेल, नागपुर से चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले, अकोला सह बुल्ढाना सह वाशिम से वसंत मदनलाल खंडेलवाल, वहीं मुंबई से राजहंस धनंजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इसी के साथ टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब रही है। रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड पर 16 गेंद शेष रहते 7 विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत को जीत के लिए 154 रन की जरूरत थी, जिसे टीम ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 154 रन के टारगेट को भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने बौना साबित किया। केएल राहुल ने 65 तो वहीं रोहित शर्मा ने 55 रन की पारी खेली। वहीं इस मैच में अपना टी20 डेब्यू करने वाले हर्षल पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला अब रविवार को कोलकाता में खेला जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का इंडोनेशिया मास्टर्स में जबरदस्त खेल जारी है। सिंधु ने शुक्रवार को तुर्की की नेस्लिहान यिगिट को 21-13, 21-10 से मात दी। सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनाने में कामयाबी पाई। सिंधु ने इस मुकाबले को महज 35 मिनट के अंदर अपने नाम कर लिया। सिंधु ने इससे पहले डेनमार्क ओपन में भी यिगिट को शिकस्त दी थी। सिंधु का आज सेमीफाइनल में सामना जापान की अकाने यामागुची के साथ होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को 21-7, 21-18 से पराजित किया। किदाम्बी श्रीकांत आज सेमीफाइनल में डेनमार्क के एंडर्स एटोनसेन के साथ भिड़ेंगे। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है, जो 28 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन समारोह का संचालन फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता मनीष पॉल करेंगे। महोत्सव में दुनिया भर से 300 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव के माध्यम से
5 ब्रिक्स देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिल्म समारोह में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म से लोकप्रिय सीरीज की क्लिप दिखाई जाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 रचनात्मक प्रतिभाओं का भी चयन किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड में प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुनिया भर से फीचर श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फिक्शन फिल्मों का चयन किया गया है, जिनके बीच गोल्डन पीकॉक और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।